मैंने जो अपॉर्चुनिटी ग्रास्प की वो गैप था नगर सिटी में कि जो मैंने पिक किया था। मार्केटिंग के लिए समय कम था, मेरे पास पैसा नहीं था। मेरे दादाजी का एक वर्ड था, एक फुटी कौड़ी मिलनार नहीं। मेरा हनीमून भी मैंने शादी के बाद 3 साल बाद में गया। बहुत सारा लोन सर पर था और एक दिन में 1 मिनट में मेरा सारा बिजनेस खत्म हो चुका था। दोस्तों, लोग कहते हैं कि किस्मत ऊपर वाला लिखता है, पर इस शहर में किस्मत हो या कारोबार, दिखता वही है जो बोर्ड पर दिखता है। Have you ever wondered who is behind those massive structures that dominate our city skyline? कभी सोचा है इन खाली होर्डिंग्स को स्टोरी कौन बनाता है? Well, today we have someone who doesn't only just put up billboards but is also known as the billboard man of Ahilyanagar. Hello, everyone, and welcome to IMS Unplugged, a podcast series initiated by BBA and BCA Department, IMS Ahilyanagar. Here, we bring you business stories, entrepreneur journeys, and a powerful insight towards business tactics and business analytics. And yes, get ready, we are having something exciting today. This is your host, Suyash Gandhi, for today's podcast, and we have a really inspiring personality with us today. He is an entrepreneur, a visionary in outdoor advertising industry, and a person who is deeply committed to social services. इन्होंने सिर्फ होर्डिंग्स नहीं लगाए, उन होर्डिंग्स पर सपने चिपकाए हैं। आज हमारे साथ है द मैन who turned Ahilyanagar into his personal workspace. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Adesh R. Changedia, founder and owner at Changedia Outdoors. Sir, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. So sir, let's begin with the inspiring conversation. सबसे पहले तो शुरू से शुरुआत करते हैं। What was your early life, like your college days, and also what was the starting point जो आपको एक spark दिया जिसने आपको entrepreneur बनने के लिए? The start of my entrepreneurial journey was by sweeping the godown. My father wanted me to sweep a godown first and then to start with anything. I refused to do, which I got to know later on that he wanted me to surrender my ego for doing any start of the career. So that really helped me in my career. Since 8th standard, I used to join my business और मेरा फैमिली बिजनेस ग्रेन्स एंड पल्सेस का था, है इनफैक्ट। और उसी बिजनेस में मेरे पिताजी भी और दादाजी भी चाहते थे मैं उधर ज्वाइन हूँ। इनफैक्ट मेरी मम्मी भी और ग्रैंडफादर स्पेशली वो नहीं चाहते थे कि मैं बहुत बर्डन लेके कोई स्टडीज करूँ। Although I always excelled in my studies, I also always wanted me to do something in studies. But बचपन से बिजनेस में आना है ये माइंडसेट बना हुआ था। सो करियर में बिजनेस करना ये बहुत क्लियर था, इसमें मेरा कोई कंफ्यूजन नहीं था। आई नेवर वांटेड टू गो इनटू एनीथिंग बट इन बिजनेस। So the start was from childhood. I joined my family business of grains and pulses, where when I entered into that business and when I saw that I can do it, because my grandfather always saw a spark in me, that I can do a better business, because I always had a convincing power, what he felt like, मैं कोई भी चीज को मना सकता हूँ. So that was a pick which my grandfather always appreciated, and that felt me, that also encouraged me that I can do it. Okay. You're also an alumni of the same platform, right? Yeah. So management background के हिसाब से आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि a job is more preferable than becoming an entrepreneur? First of all, I'm happy to be interviewed in a college where I was studying. So that's the really happiness, in fact, you can say. I never thought in that way because I never gotten time to think about doing anything else. So definitely I never thought of doing job or something else, because as I said, I was very much born and brought up with the thought that I have business background, and I was always on the way of business. So frankly, I never thought of even
I had done when I was doing my MBA. I have never thought of doing anything as a job in a after as a career. I always thought that whenever I'll be completing my MBA, I'll be joining my family business. Okay, so being in business family, you were already attracted towards becoming an entrepreneur. Yeah. So अब हम ये जानना चाहेंगे कि what was that turning point, as you said कि आपने 8th क्लास से आपका family business join किया. So what was that turning point in your life that you chose outdoor advertising, या इसमें कुछ करना है ये सोचा आपने? Outdoor advertising was a very later on thought. First of all, मुझे कुछ अलग करना है. Actually, मेरा लव मैरिज था और the motivation of doing something of my own as a separate identity, वो मुझे मेरे वाइफ ने काफी encourage किया. She always wanted me to have some separate identity other than my family entity, not as a, from the business sense of the view, because but एक ऐसा prospect था उनका कि आपका फैमिली बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद आपकी एक सेपरेट आइडेंटिटी कब बनेगी, सो दैट शी हैड समथिंग इन हर माइंड कि उसे कभी तो तकलीफ हुई रहेंगी लव मैरिज के पहले कि किसी ने पूछा होगा कि व्हाट इज हिज आइडेंटिटी, सो शी ऑलवेज हैड दैट इन हर माइंड. तो मैंने वो दिमाग में रख के हमेशा एक सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी रहा है और उस टाइम मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं कुछ डिफरेंट करूं. तो आई स्टार्टेड माय फर्स्ट own individual business in industrial gases. I started my journey with the industrial gases, which I was not known. I've never had any financial backup for that business, but I got an opportunity to supply industrial gas to the companies in MIDC in Ahilyanagar, where I was not aware कि कौन सी कंपनी को कौन सा गैस लगता है. I knocked each and every company to know which gas they are using, and accordingly I planned supplying my gas. So it was a very, very difficult time of my life, where I started my day from 7 a.m. and I used to work not less than 15 hours, because not only the gases business I used to see from 7 to 10 a.m. I used to see the gases business, then I used to join my family business, and then again at night I used to go for my gases business. But it was my punch somewhere that I wanted to do something. So why I choose gases at that time? Because that was the business where I never required a investment. Correct. There, because that was a supply from the company to the small companies, and that I used to do as an you can say the commission agent, you can say. So that was the start of my career. And then at one point of time I got a call from my GIG that can you please check that what all hoardings are there in Ahmednagar, where he wanted to put the advertisement of some liquor ad was there, and he wanted some hoardings for that brand. When I went to see what all hoardings are available in Nagar, I got to know that there were not I mean there were very shabby sort of hoardings. They were not well maintained, they were not very disciplined, they were not very clean, and also I found that those were very small hoardings at that time. In 2004 hoardings were very small in size in the city, where I thought advertisement won't be proper. That was my first click. And I communicated this to my GIG, and he asked me to erect hoarding. So I was very much I refused him that I won't do it, because I really don't have time, because I'm already working for 15 hours a day with my family business of grains and with the Changedia gases. So I never wanted to do any outdoor advertising business. So that was the start of my outdoor advertising business. Okay, so we can assume that your entrepreneurship pushed you into different careers before choosing outdoor advertising. Right. Even after gas agency, आपने कुछ और चूज किया आउटडोर एडवर्टाइजिंग के पहले? नहीं, मैंने गैसेस के बिजनेस के साथ एडवर्टाइजिंग का जो मुझे अभी ये जीआईजी की ओर से एक ऑफर मिला था कि आप होर्डिंग्स लगाइए, सो मेरे पास पैसे तो थे नहीं. करेक्ट. एट द सेम टाइम मेरे पास टाइम भी नहीं था, बट उन्होंने बोला कि आई विल डू एवरीथिंग, आई विल इन्वेस्ट,
I will give you material, you just manage the things. So you just, I will come down to Ahilyanagar, I will search some spaces, I will मैं कुछ सिलेक्ट करके देता हूँ ये जगह, और ये प्रॉपर्टीज आप अगर मिलाते हो आपके होर्डिंग के लिए, तो हम उसको होर्डिंग लगाने के लिए हम वहां अपन जगह अगर भाड़े से मिलता है तो वो लगा लेंगे. सो व्हेन आई स्टार्टेड, जैसे मेरा एक आदत था कि मैं कन्विंस कर सकता हूँ, तो मैं कुछ जगह देखने के लिए गया, वो होर्डिंग्स की जगह मुझे तुरंत मिल भी गई. एंड माय जीआईजी वाज शॉक्ड कि यार आज मैंने बात किया, दूसरे दिन आपको जगह भी मिल गई, तो व्हाट इज वर्किंग. सो इट वाज अ फैमिली गुडविल व्हिच वर्क. तो वहां से मेरा फर्स्ट होर्डिंग चालू हुआ. माय फर्स्ट होर्डिंग वाज इन सक्कर चौक, जहां से मैंने चालू किया, और वहां से मेरा फर्स्ट होर्डिंग इरेक्ट हुआ, जो मेरा मटेरियल नहीं था, ना ही ये था, कुछ इन्वेस्टमेंट था. देन जीआईजी के ही पैसों पर, यानी उनका मटेरियल था, उस पर मैंने होर्डिंग्स लगाना चालू किया. मैंने 3 होर्डिंग्स लगाए, और फिर जीआईजी ने मुझे इंसिस्ट किया कि आप खुद का ही करो होर्डिंग्स का काम, आप कर सकते हो और बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो. ये 3 होर्डिंग का मटेरियल आप रहने दो. तो मैंने उनको बोला ये 3 होर्डिंग का मटेरियल का कॉस्ट आज डिसाइड कर लेते हैं, उसका मुझे कब देना है, मुझे टाइम दीजिए, मैं उसका पैसा आपको कर दूंगा. सो दिस वे आई स्टार्टेड माय जर्नी विदाउट एनी सिंगल रुपी, नो लोन, और मैंने वहां से शुरुआत किया. इट्स ऑब्वियसली अ ग्रेट थिंग. विदाउट लोन इतना बड़ा इंडस्ट्री में कदम रखना इज नॉट इजी. आपने बोला कि आपने फर्स्ट होर्डिंग के बाद सेकंड थर्ड होर्डिंग्स लगाए. सो ड्यूरिंग पुटिंग अप दिस होर्डिंग्स आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? लाइक देयर आर मेनी लीगल इश्यूज किसी बिल्डिंग के ऊपर होर्डिंग लगाना. सो चैलेंजेस ने आपके पेशेंस को कैसे टेस्ट किया ड्यूरिंग दिस डेज इनिशियल? बेसिकली ये मेरा फील्ड भी नहीं था. I had studied in finance. So somewhere I was in marketing also. So मैं कहीं यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करना या उसको वो उसमें मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, ना ही मेरा मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड था. कोई भी एक होर्डिंग इंडस्ट्री में आना है, होर्डिंग्स लगाना है, तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड भी होना जरूरी है, क्योंकि होर्डिंग इज समथिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट and then marketing. So this business has all the aspects of the finance, marketing and manufacturing also. तो ये मेरा बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन चैलेंजेस मैन्युफैक्चरिंग के आते थे, उसके बाद मार्केटिंग के भी आए मुझे चैलेंजेस. बट एक था कि मैंने जो अपॉर्चुनिटी ग्रास्प की, वो अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट था. वो गैप था नगर सिटी में कि जो मैंने पिक किया था, कि नगर में अच्छे एडवर्टाइजर्स नहीं थे, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट थी, नगर की साइज जिस तरह से ग्रोथ हो रही थी उस हिसाब से होर्डिंग्स नहीं थे. सो वो गैप जो मैंने पिक किया, वो कॉन्फिडेंस था कि यहाँ वर्क हो रहा है. ये मुझे आउटडोर एडवर्टाइजिंग बिजनेस करते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज था कि मुझे फैमिली बिजनेस से टाइम निकाल कर वो काम करना था. दूसरा मुझे चैलेंज था कि मुझे मार्केटिंग के लिए समय कम था. दूसरा मेरे पास पैसा नहीं था, और मुझे पहले दिन से इस चीज का क्लैरिटी था कि घर से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा. मेरे दादाजी का एक वर्ड था, 1 फुटी कौड़ी मिलनार नहीं. सो दैट वाज अ वेरी हर्टिंग स्टेटमेंट फॉर मी, बिकॉज आई न्यू कि दे कैन. फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं था, बहुत बड़ा बिजनेस हमारा ग्रेन्स एंड पल्सेस का रहा हुआ है, पर वो नहीं चाहते थे कि मैं कहीं बाहर जाऊं, क्योंकि उनको ऐसा लगता था दिस इज ऑल वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, बिकॉज सेटल बिजनेस छोड़ के क्यों आप इसमें पड़. मैं बहुत सारा कम्युनिकेशन गया, मैं चेयरमैन तक पहुंचा कि यार मुझे लोन क्या कैसे कर सकते हैं, मुझे पैसा चाहिए, मेरे पास बिजनेस है, कस्टमर है, मार्केटिंग है, सब है मेरे पास, पर मेरे पास पैसा नहीं है. तो यू कैन हैव ओनली 1 लाख रुपीज लोन without mortgage or collateral. So I took that my first loan without mortgage. 1 लाख रुपए का लोन मिला. So again मेरा 4th होर्डिंग लगा with 1 lakh rupees loan from, and I started again. फिर उसमें पैसा आता गया, मैं वापस पैसा लगाता गया, होर्डिंग्स में पैसा आता गया, पैसा उसमें लगाते गया. बट वो पैशन था. जिस टाइम मैंने वो मेरा 12 इयर्स का एक पीरियड था या 14 इयर्स का पीरियड है, यू वोंट बिलीव, 15-16 आवर्स का मेरा वर्किंग रहा हुआ है. इन दिनों में ना कोई सेलिब्रेशन,
ना कोई सोशलाइजिंग, ना कोई फैमिली के साथ कोई बहुत टाइम स्पेंडिंग, ना ही, यू वोंट बिलीव, मेरा हनीमून भी मैंने शादी के बाद 3 साल बाद में गया, एंड दैट वाज आल्सो फॉर 3 days। सो वो पैशन शादी के तुरंत बाद से जो दिमाग में वो चालू हुआ कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर माय ओन आइडेंटिटी। सो Correct. वो जो मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड था उसमें मैं डिटैच था। मैं हार्डली 6 महीने में एक आध बार कोई फ्रेंड से मिलता था। मेरा ऐसा 12 से 14 साल गया है जहां मैं कहीं भी नहीं था इन्वॉल्व। सो मैं कुछ काम से शिरडी मंदिर गया था, ऑब्वियसली दर्शन के लिए गया था। हाँ, तो शिरडी में मंदिर में था और उस वक्त नगर में एक बड़ा साइक्लोन हुआ और Okay. मेरा फोन शिरडी में जब मंदिर में जाते हैं तो हम स्विच You have ऑफ to switch off. रखते हैं और उस टाइम टाइम भी ज़्यादा लगता था। तो मुझे कुछ 3 घंटे लगे रह गए जब मेरा फोन स्विच ऑफ था। और उन 3 घंटों में यहाँ बहुत बड़ा साइक्लोन आके गया, बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारे होर्डिंग्स मेरे गिरे Okay. और बहुत सारे होर्डिंग्स का, ऑलमोस्ट सभी होर्डिंग्स के स्ट्रक्चर पूरे डैमेज कम ज़्यादा इसमें हुए। मैंने जब फोन चालू किया मुझे मालूम पड़ा कि नगर में ऐसा हुआ। मैं आया, मैं एक होर्डिंग जो मेरा फर्स्ट होर्डिंग था तो सक्कर मैं सक्कर चौक में नहीं सॉरी सेकंड होर्डिंग था मेरा सीना ब्रिज पर, Okay. रिवर के बाजू में था। Correct. मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ होर्डिंग देखा, पूरा सोया हुआ था होर्डिंग। सो पूरा मेरा होर्डिंग गिरा हुआ था। तब मेरे पास मेरे ऊपर कुछ लोन भी था, मर्चेंट बैंक से मैंने कुछ लिया था, उसके बाद मैंने कुछ प्रोजेक्ट लोन भी किया था। बहुत सारा लोन सर पर था और एक दिन में 1 मिनट में मेरा सारा बिजनेस खत्म हो चुका था। तो मैंने मेरी आंखों से देखा कि मेरा सारा बिजनेस खत्म हो गया है। और वहां से वो होर्डिंग देखने के बाद समथिंग हैपेंड कि मैं जो है जान ही नहीं रही, Correct. कोई जान ही नहीं रही मेरे। मैं कुछ कर ही नहीं पाया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं वहां से घर पे गया और जो सोया मैं 3 दिन तक मैं मेरे बेड से भी नहीं उठा, क्योंकि मेरे पास कुछ बोलने के लिए तो था ही नहीं, क्योंकि सभी राइट थे उस वक्त, मैं अकेला ही रॉन्ग था। Wrong. सभी ने मुझे वार्न किया था हर बार कि यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ, बिकॉज फैमिली बिजनेस छोड़ के बाकी सब करने में पॉइंट नहीं है। Correct. कहीं ना कहीं मेरे सारे डिसीजंस गलत लगे, मेरा बिजनेस भी गलत लगा और मेरे सारे डिसीजंस फेल भी थे। सो दैट वाज अ फेलियर ऑफ माय करियर, जहां मैंने देखा कि जीरो तो हो चुका हूँ पर माइनस में, बहुत बड़ा माइनस में था। और ये भी मालूम था कि मुझे फैमिली मेरे लोन को जो अभी देना बाकी है, लेकिन बहुत सारा लोन है और मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी सोर्स ऑफ इनकम वो देने के लिए। तो वो मुझे 3 दिन तक मैं सोते रहा, कुछ भी नहीं हुआ। मैं मेरे मम्मी ने पापा ने दोनों ने भी, मेरे ग्रैंडफादर ने बोला कि क्या है वो देख के तो आओ, वहां जाके तो आओ, क्या करना है। वो मटेरियल तो सब रातों रात वहां रास्ते पे ना, होर्डिंग्स तो सब रास्ते पे। तो बोले वो सब मटेरियल तो चोरी भी जाएगा तो भी मालूम नहीं पड़ेगा। बट मेरे में ताकत ही नहीं थी वो उठने To की। face that. हाँ, तो माय मदर कॉल्ड माय मामा एंड वो आए मेरे पास। और मेरे मामा ने मुझे इतना ही पूछा उस वक्त कि जो भी हो गया, मैं सोया हुआ था उस वक्त भी, वो मेरे बाजू में बैठे, बोले तू कहाँ था? मतलब मैं मंदिर में था शिरडी में, वापस तो कभी जाऊंगा ही नहीं शिरडी मंदिर। वहां जाने के बाद ही मेरा ऐसा हुआ, मेरे को मैं शिरडी मंदिर तो वापस जाऊंगा भी नहीं, साईं बाबा तो विषय ही नहीं रहा ऐसा। बोले तू जहाँ था ना वो भगवान के दरवाजे में था। Correct. और याद रखना कि भगवान के यहाँ कुछ भी गलत नहीं होगा, वो गलत नहीं करेंगे, वो कुछ अच्छा चाह रहे और बहुत कुछ अच्छा चाह रहे, इसलिए तुझे ये सब हुआ है। शायद तुझे ये बिजनेस से बाहर करना था, आगे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला रहेगा या है। आज जो हुआ है प्रॉब्लम, ये थोड़े के में हुआ है, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। ये तू सोच और इस पे जाके तू वाइंड अप करके आ जा। मैंने सारा मटेरियल वाइंड अप किया, मैंने वो सारा वाइंड अप करके मैंने, अब बहुत सारा मटेरियल था मेरे पास, मेरे मार्केट यार्ड में जहाँ गोडाउन था वहाँ उतनी जगह भी नहीं थी, क्योंकि उतना जगह नहीं था। तो मेरे फादर इन लॉ को मैंने रिक्वेस्ट किया कि उनका बड़ा फैक्ट्री प्रीमाइसेस था, वहाँ हम सारा ये मटेरियल रखते हैं, इसलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया और मैंने वो वहाँ मटेरियल रखा। और मटेरियल प्लेस करते वक्त तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या हुआ। वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, मतलब मेरा स्ट्रक्चर सब गिर गया। बोले ये स्ट्रक्चर राइट नहीं था, रॉन्ग था स्ट्रक्चर,
गलत स्ट्रक्चर पे होर्डिंग्स खड़े थे इसलिए गिरे। होर्डिंग्स नहीं गिरने के लिए आपको बहुत सिस्टमेटिकली जाना पड़ेगा। आपका मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड नहीं है इसलिए आप नहीं गए उसमें। मेरा मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड है, मैं आपको इस चीज़ में हेल्प करता हूँ। हम स्ट्रक्चरल डिजाइनर्स का भी हेल्प लेंगे और आप वापस होर्डिंग लगाना। मतलब मेरी तो इच्छा ही नहीं है अभी वापस वो करने की, तो आप मुझे बाकी कुछ मत गाइड कीजिए, बस जगह दे दीजिए, क्या रेंट रहेगा मैं वो दे दूंगा, बस आप मेरे को जगह दे दीजिए। मतलब मुझे 1 रुपया भी नहीं लगाना है भाई, अभी मेरे पास है भी नहीं और लगाना भी नहीं। बोले कुछ मत करो, है वो मटेरियल में हम करेंगे। बोले हम करेंगे यानी, बोले मैं मेरे लेबर्स देता हूँ आपको और आप इसको वापस रिस्ट्रक्चर करो, पुराने मटेरियल में हम नया स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसको प्लेस करो। बोले ये हो सकता है, नया इन्वेस्टमेंट नहीं करते हुए ये हो सकता है। तो एक होर्डिंग मैंने वहाँ उनके गाइडेंस में बनाया और वो लगाया, एंड दैट वाज अगेन स्टार्ट ऑफ new Chengelia outdoors with a very sturdy, very stable, 10 times heavier structure and a very systematic structural design करके हुआ। और मैंने उस टाइम पूना मुंबई तक सब बात कर ली कि स्ट्रक्चरल डिजाइन ही नहीं कोई बनाता था पहले। एक फैब्रिकेटर के एक्सपीरियंस से वो बनते थे, तो कोई ऐसा प्रॉपर डिजाइन नहीं था जो हमने बनाया फिर। सो वी वेंट थ्रू अ वेरी सिस्टमेटिक जर्नी ऑफ आवर बिजनेस उस वक्त के बाद। टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, एज अ बिजनेस इनसाइडर आपका क्या एक्सपीरियंस था बीइंग ऑन एलुमनाई प्लेटफॉर्म फॉर दिस पॉडकास्ट? जैसे मैंने बताया कि इट इज अ मैटर ऑफ नॉट बीइंग प्राउड बट बीइंग हैप्पी दैट आई एम समवेयर वेयर आई हैव learned so many things, and that's really very emotional for me, and that was the reason I immediately accepted your offer for being here, and I would always love to be here, and I really thank to all of my seniors and all of you students that you have given me a chance coming here and sharing my journey with you. Definitely I'm there always for the college, for the any help required from my side. I hope my journey a bit contribute to your life. That would be the most appreciable thing for myself. Thank you. Also to our audience, comfort zone से सक्सेस कभी नहीं आता है. It always needs your action, persistence and a dedication, especially जैसे सर ने बोला कि you need a clear mindset for starting an entrepreneur journey. So if this episode inspired you, do not forget to share it with someone who needs to start his entrepreneur journey and needs a lot of motivation. This is Suyash Gandhi signing off from IMS Unplugged. Stay inspired, keep building your dreams.